in this platform where we not only know our culture, know the spirituality, but also we tend to change our life, our personality, and remove all type of obstacles, the dukkha, the pain from our life. आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस मंच से, जहां हम न केवल अपने जीवन को सुंदर, सफल और सशक्त बनाते हैं, बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता और दुखों के निवारण हेतु वो सारे उपक्रम अपनाते हैं जो सनातन काल से हमारे ऋषि महर्षियों ने हमें आशीर्वाद स्वरूप प्रदान किया है। प्रज्ञा का दिन रविवार इसी हेतु समर्पित है कि हम अपने आप से पूछ सकें कि मैं कौन हूं, अपने आप को जान सकें कि मेरा उद्देश्य क्या है, हम ये समझ पाए कि जीवन क्या है। This session teach you what is life, what is the aim of life. और इस परिक्रम में आज हम लोग राजयोग का शुभ आरंभ करते हैं, and we are going to start the RajYog. So get ready to start with. हम लोग शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाएं। All of you please sit in a comfortable meditative posture. सभी लोग आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। Just make your spine erect, head and spine in a straight line, and your all other body parts will completely relaxed. पूरे शरीर को बिल्कुल स्थिर और शांत कीजिए। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, बाकी शरीर के सभी अंग बिल्कुल शिथिल। स्थिरता के अनुशासन के साथ आज हम राजयोग का आरंभ करते हैं। With the discipline of stillness and the steadiness, we start the session of Raja Yoga. In Raja Yoga, first what we do is we follow the discipline of steadiness. हम लोग सर्वप्रथम अनुशासन, स्थिरता का अनुशासन अपनाते हैं। और दूसरा, हम दृष्टा बनते हैं। We become a seer, a witness. Watch your whole body like a drashta. एक बार अपने आप को देखिए, आप कौन हैं। चारों ओर से आप देखिए। Watch yourself from all around. See yourself. Look at your body, the right side of the body, the left side of the body, the frontal body, the back side of the body. एक दृष्टा की भांति आप अपने आप को देखिए। शरीर के दाएं भाग को देखिए, बाएं भाग को देखिए, शरीर के आगे की तरफ से देखिए, पीछे की तरफ से देखिए। Let's closely watch ourselves and find out who am I. चलिए
थोड़ा और भीतर जाते हैं, सूक्ष्मता से अपने आप को निहारते हैं और देखते हैं कि हम कौन हैं। थोड़ा शरीर के करीब आइए, करीब से देखिए। शुरुआत करते हैं दाईं तरफ से। नाउ come close to your body and watch your body closely. With a subtle awareness, try to find out, who am I? Exactly what is our elements? What exactly am I? So, go close to your body, watch very subtle parts come to the right side of your body. Right hand's thumb, दाहिने हाथ का अंगूठा. Watch the right hand's thumb. ध्यान रहे आपको शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है. राजयोग में क्रिया के बजाय ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं. कोई क्रिया नहीं करेंगे. नो एक्शंस, ओनली अवेयरनेस. डोंट मूव योर बॉडी, डोंट डू एनी क्रिया, जस्ट वॉच whatever it is. In Raja Yoga, you are going to just a Jnana Yogi, where you perceive, you recognize, you become aware of your own self. Watch the right hand's thumb. Watch it from all around. The muscles, the bones, the energy inside your thumb. Without any movement, go deep with the right hand's thumb. अपने दाहिने अंगूठे के भीतर आइए, उसके मांसपेशियों को देखिए, हड्डियों और उसके भीतर के प्राण को अनुभव कीजिए. अपने दाहिने अंगूठे को अच्छी तरह से जांच परख लीजिए, देख लीजिए. Now the next index finger. Watch carefully the index finger without moving it. अब अपने तर्जनी उंगली के प्रति सजग बनिए. बिना हिलाए डुलाए सजग बनिए. तर्जनी उंगली की मांसपेशी, हड्डियां, रक्त और प्राण सभी के प्रति सजग बनिए. Watch the index finger from all around, the muscles, the bones, the blood, the energy inside. Watch the finger closely, deeply, with your subtle awareness. The middle finger, madhyama, madhyama ungli. The ring finger, anamika anguli. The small finger, kanistha. The 5 fingers together. पांचों उंगलियां एक साथ. बड़े ध्यान से अपनी उंगलियों को देखिए, परखिए, जांचिए, पहचानिए. उसमें आप कहां हैं? Where are you in these 5 fingers? Go close, analyze, watch carefully. Where are you in these 5 fingers? Palm, back of the palm, हथेली,
हथेली का पिछला भाग पार्श्व। रिस्ट कलाई मणिबद्ध। भुजबल्ली लोअर आर्म। फील the right hand's lower arm, the muscles, the bones, the energy behind it. Watch carefully. The elbow, kohni, baah, the upper arm. Watch carefully the upper arm, go subtle and explore the muscles, the bones, the energy behind the upper arm. Your whole right hand. दायां कंधा। ध्यान से दाएं कंधे को देखिए, वहां की मांसपेशियां, भीतर उतरिए, कंधे के भीतर जाइए, हड्डियों तक जाइए, रक्त धमनियों को महसूस कीजिए। Go deep in your shoulders, the right shoulder, skin, in a deep of skin, the muscles, the bones, the blood capillaries, the prana, the energy inside your right shoulder. Right chest. Go deep with the right chest. दाई छाती, दाई छाती के भीतर जाइए, the lungs, rib bones, the right abdomen. Go deep with the right abdomen, stomach, intestines, the energy. The right waist, right thigh, दाई जंघा, दायां कमर। बड़े ध्यान से देखिए, एक एक हड्डी तक जाइए, एक एक मांसपेशी, उसके उत्तक कोशिका तक जाइए। Go to the cellular level, find out the ligaments, the tissues, each and every bones and muscles. Find out the prana, the energy. Find out yourself. Where are you? Who am I? घुटना, knee, calf muscle and sing bone. Watch your calf muscle and sing bone. पिंडली, दाई पिंडली,
ankle, the right ankle, heel, sole, and the toes. Watch deep No, no, you don't want to your speak. ankle, heel, and the sole. Go deep and find the muscles, the bones of your ankle, sole, heel, and the toes. टखना, एड़ी, तलवा और पंजा। दाएं पैर का टखना, एड़ी, तलवा और पंजा। सभी मांसपेशियों को देखें, हड्डियों और उसके जॉइंट्स को देखें। Feel the prana there. Now whole right leg, whole right torso, right side of your body. पूरा दायां भाग, पूरा दायां हिस्सा, शरीर का दायां हिस्सा। Now compare yourself, your right side and left side. What happened? Find the comparison. In right side, you rotate your awareness to every body parts, single cell and muscles. And left, do you feel any change? बाएं और दाएं हिस्से की आप तुलना कीजिए, महसूस कीजिए कि क्या अंतर हुआ जब आप दाएं हिस्से में अपनी चेतना को ले गए और बाएं हिस्से में क्या परिवर्तन हो गया। Find the change. Now come to the left side. We do the same with the left side. Left hand's thumb. हम लोग बाएं तरफ फिर से वही क्रिया करेंगे। बाएं हाथ का अंगूठा, the index finger, तर्जनी, the middle finger, मध्यमा, the ring finger, अनामिका, the small finger, कनिष्ठा. All fingers together, सभी उंगलियां एक साथ, palm and the back of palm, हथेली एवं पार्श्व. The wrist, कलाई, भुजबल्ली, the lower arm, elbow, कोहनी, upper arm, बांह, the left shoulder, बायां कंधा, बाईं छाती, left chest, left abdomen, बायां उदर, left pelvic and left thigh, कमर और बायां जंघा, knee, घुटना, sing bone and calf muscle, पिंडली, ankle, टखना,
heel, एड़ी, sole, talwa, and the feet, panja. Whole left side of the body, पूरे शरीर का बायां हिस्सा। बड़े ध्यान से बाएं हिस्से को एक एक करके देखिए। Watch carefully all the muscles and bones, all the tissues and ligaments. Now come to the back side of the body. You are sitting in a ground, your right buttock, the left buttock, दोनों नितंब, back, lower back, spine. Feel your spine vertebra by vertebra from down to up. अपने रीढ़ की हड्डी को एक एक करके महसूस कीजिए नीचे से ऊपर तक, एक एक संधि को। अपर बैक, पीठ का ऊपरी भाग, बैक ऑफ द शोल्डर, कंधे का पिछला भाग, बैक ऑफ द नेक, गले का पिछला भाग, होल नेक, पूरा गला, बैक ऑफ द हेड, सर का पिछला भाग, टॉप ऑफ द हेड, सर का ऊपरी भाग, फोरहेड, कपाल, राइट आईब्रो, दाईं भौं, लेफ्ट आईब्रो, बाईं भौं, आईब्रो सेंटर, भ्रूमध्य, राइट आई, दाईं आंख, लेफ्ट आई, बाईं आंख। गहरे में उतर के देखिए, आंख के लेंसेस तक जाइए, पीछे सर तक जाइए। Go deep in your eyes, watch the lenses, the ciliary muscles, the retina, and go inside your head. The temples, the ears, the right ear and the left ear. Go deep inside the ear, find the eardrums. दायां और बायां कान, गहरे में उतरिए, कान के चारों ओर से देखिए, भीतर उतर के देखिए, कान के पर्दे तक जाइए। दायां गाल, बायां गाल, राइट चिक, लेफ्ट चिक, राइट नोस्ट्रिल, लेफ्ट नोस्ट्रिल, दाईं नासिका, वाम नासिका, होल नोज, पूरी नाक, नेसल पैसेज, नासारंध्र, अपर लिप, लोअर लिप, दोनों होठ, मुख के भीतर जाइए, दांत, जिह्वा, तालू, पूरा मुख, whole mouth, the teeth, the tongue, and the palates. Chin, ठुड्डी, जबड़ा, whole face,
inside the face, whole skull, whole head, your brain, the right side of the brain, the left side of the brain, मस्तिष्क, दाहिना मस्तिष्क, बायां मस्तिष्क, whole head, पूरा सर, सर और गर्दन एक साथ, head and neck together. ढूंढ लीजिए कहाँ हैं आप, कौन हैं आप. Try to find out where are you, who am I. Inside your head, inside your muscles, inside your bones, in your prana, in the vital energy, or in physiology, in the function of these organs and system of the body. Become aware of whole body. पूरे शरीर के प्रति फिर से सजग बनिए. Watch yourself like a द्रष्टा. एक द्रष्टा की तरह अपने आप को देखिए. Be a observer. धीरे धीरे वापस आइए. Externalize yourself. Now we will chant 3 ohms together, and after om chanting, repeat the Yoga Sutra after me. 3 बार हम लोग ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे. उसके बाद योग सूत्र को मेरे बाद दोहराएंगे. For Om chanting, take deep breath in. लंबा गहरा श्वास लीजिए. Now repeat the Yoga Sutra after me. Ath yoganusasanam yogaschitta vritti nirodhaha tadadrastuh swarupeva sthanam Om Shanti Shanti Shanti. दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और धीरे से अपने आंखों पर रख लीजिए और धीरे से हाथ नीचे and open your eyes. So, welcome once again. So what we did today, we became a drashta and watch, observe our body. We become witness. We didn't move our body. We didn't did any action, kriya. That's what the RajYoga is. RajYoga is not about what you do. RajYoga is all about what you know. RajYoga is all about
what you feel, what you perceive, how you recognize. So it seems Raj Yoga is something with the mind. In very superficial eyes understanding, people think Raj Yoga is something with the mind. In very outer look, people think, oh, it is something contemplation. It is something in which we learn to modify the mind. Raj Yoga is something which we do with our thoughts. And we compare it with the Hatha Yoga. We say, oh, Hatha Yoga is something with the body, physical body. We do exercises, physical postures. That is Hatha Yoga. And when we do with the mind, that is Raja Yoga. That is very partial correct. Very small thing is correct in this. You can say 5% is correct, but 95% is not correct. It is incorrect. Neither Hatha Yoga is the practice of physical body, nor the Raj Yoga is the practice of only mind. Then what is it? Raja Yoga is a discipline. Today I will tell you what type of discipline is this. Today I am going to tell you what type of discipline you need for the Raja Yoga. आज हमने क्या किया? आज जो हमने प्रैक्टिस किया, आज हम दृष्टा बनने की कोशिश किया. आज हमने भली भांति से अपने शरीर को देखने का प्रयास किए. दाएं तरफ से शुरू किए, बाएं तरफ से, पीछे, आगे, ऊपर, सर, गर्दन, सब अच्छे तरीके से, भली भांति तरीके से हम स्वयं को जानने का, देखने का प्रयास किए. हमने कोशिश की जानने की कि मैं कौन हूं, क्या ये मैं शरीर हूं. हमने कोशिश की मांसपेशियों को समझने की, फील करने की. और राजयोग दृष्टा बन करके स्वयं को जानना है. आपको लगता होगा कि दृष्टा बनना या राजयोग एक मानसिक क्रिया है या मन से संबंधित योग है. और ठीक कुछ लोग समझते हैं कि हठ योग में शारीरिक अभ्यास करते हैं, पर वस्तुतः हठ योग न तो शारीरिक अभ्यास है और न ही राजयोग मानसिक नियंत्रण है. हमें ठीक ठीक समझना होगा कि राजयोग क्या है. राजयोग एक अनुशासन है. तो किस प्रकार का अनुशासन है ये? आज हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार का अनुशासन है. हमें राजयोग में क्या करना होता है. इससे पहले कि मैं इस अनुशासन को समझाऊं, राजयोग के अनुशासन की गहराई में उतरूं, सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि ये हम क्यों पढ़ें, इसका उद्देश्य क्या है, इसके अधिकारी कौन है, क्यों जाने, क्यों पढ़ें, और किन्हें पढ़ना चाहिए, किन्हें नहीं पढ़ना चाहिए, किन्हें जानना चाहिए, किन्हें नहीं जानना चाहिए. इस बात का पहले ही तय कर लें हम लोग, किनको कितना पढ़ना चाहिए, कितना जानना चाहिए, तो सुविधा हो जाएगी आपको अनुशासन में उतरने का. वरना कई लोग उत्शृंखलता को, अनुशासनहीनता को आजादी कहते हैं, स्वतंत्रता कहते हैं. अनुशासनहीनता स्वतंत्रता नहीं है.
इस बात के फर्क को समझिए, इन सारे शब्दों की गहराइयों को समझिए। What I'm talking about is, before we try to understand what type of discipline is it, what we have to do in Raja Yoga, the one thing is very important. When I talk about the Raja Yoga, who is entitled for the Raja Yoga? Why? What is the objective, the aim? Why we should know Raja Yoga? Why we should practice Raja Yoga? And who should practice, who should not, and how much? Let us define all these things before we start this Raja Yoga. We should know all about before we enter into the discipline. And yes, the discipline. Some people think when you go against of discipline, when you are undisciplined, then this is the freedom. And this is wrong. Neither they understood the discipline nor they understood the freedom. The freedom doesn't mean indiscipline. So today we go word by word and try to understand what type of discipline and who should practice. सबसे पहले ये राजयोग उन लोगों के लिए है, नंबर 1, ये उन लोगों के लिए है जो लोग जीवन के दुख से परेशान हैं, जीवन के समस्याओं से परेशान हैं, जीवन में होने वाले अराजकता से परेशान हैं, उत्पात से परेशान हैं। Number 1, this Raj Yoga is for them who is suffering and painful in their life. They feel the obstacles, they feel the hurdles in all around their life. Either it is social life, emotional life, mental life, spiritual life. जिंदगी में कहीं भी आप अवरोध को महसूस कर रहे हैं, जीवन शांत नहीं है, लाइफ इज नॉट पीसफुल, लाइफ इज बॉदरिंग यू, आप किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं, आपको पता ही नहीं कि कैसे करना है, क्या करना है, you don't know what to do, how to resolve the issues of our life, where to go, what to achieve, what is the real achievements, what is pap and punya, what is ethics. There are so many confusions of your life and you want the solution. जिंदगी में तमाम तरह की समस्याएं हैं, बहुतेरे समस्याएं हैं, चाहे वो सामाजिक जीवन से हो, मनस आपके मानसिक हो, शारीरिक हो, अनेकानेक परेशानियां हैं। आपने क्या पाया, क्या खोया, जीवन के प्रत्येक उतार चढ़ाव में आप कंफ्यूज्ड हैं, कहां जाना है, क्या पाना है। तो पहला जो अधिकारी है उसमें तो सभी लोग हाथ उठा लेंगे, यस आई एम, यस आई एम। इफ आई से दिस वन एज अ फर्स्ट requisite, then everybody will raise their hand and say, yes, I'm here. Raj Yoga is for me. सब लोग को लगेगा कि हाँ, ये जो मैं कह रहा हूं तो सबके जीवन में हो रहा है, तो राजयोग सबके लिए। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका हल चाहते हैं। ये समझिए इस बात को।
There are only few people, those who want to get the real solution for it. Mostly people, they suffer, they have the pain, they unaware, they can come out from this also. They start, they somehow in their mind, okay, the life is suffering, so we have to face this pain, so we can't do anything. They they adjusted with the pain and suffering. And some people, they even don't know they are in a pain. There are some experiments happen in a scientific lab, and a frog is kept inside a tube in the water. The frog was happy. No problem. The water is there in the tube and the frog is jumping. No problem. The scientist slowly increased the temperature of the water. Very slow, very slow. And the frog has no problem because this temperature is growing or increasing so slow, so slow, so it's nothing problem, it's okay. And slowly, slowly, the water get warmer and the warmer. And also, the frog is getting habitual of this warmth, the heat. He forgot his happiness when the water was okay. He was jumping in the water. He forgot. He adjusted himself with the warm water. He slows down. His jumping stops. And the scientist continuously increasing slowly, slowly the temperature of the water. And the frog also become stagnant and slowly, slowly die. मैं बता रहा था एक वैज्ञानिक परीक्षण के विषय में। एक मेढक को प्रयोग में लाया गया जब पानी ताजा, फ्रेश और अच्छा था। मेढक कूद रहा था, उछल रहा था। जैसे जैसे पानी गर्म करता गया, साइंटिस्ट उसको बहुत धीमे धीमे, बहुत स्लोली मेढक एडजस्ट करता गया। धीरे धीरे वो डल होता चला गया, मंद होता चला गया। और ये मेढक भूलता चला गया कि कभी वो स्वस्थ और ताजे पानी में उछल रहा था। धीरे धीरे मंद होते होते एक समय ऐसा आया कि पानी इतना गर्म हो गया कि वो मेढक अंदर ही अंदर मर गया। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हमारे जीवन में भी ताप है। इसको कहते हैं त्रय ताप। 3 प्रकार के ताप होते हैं, आधि दैविक, आधि भौतिक और आधि आत्मिक। 3 ताप होते हैं। 3 प्रकार की गर्मी जो परमात्मा ना हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम सब मेढक हैं। यस, हम सब मेढक हैं और वो गर्म करते रहते हैं। तीनों ताप दिए रहते हैं, कभी आध्यात्मिक ताप, कभी आधि भौतिक ताप, कभी आधि आत्मिक ताप। भौतिक, दैविक और आत्मिक, ये तीनों ताप, तीनों गर्मी हम लोग को मिलता रहता है। और हम धीरे 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 मंद होते जाते हैं, अपनी खुशियां भूल जाते हैं कि हम पहले चाहते भी थे। और धीरे धीरे हमारी मृत्यु हो जाती है। बात उतनी ही तक खत्म हो जाती तो भी ठीक था। हम बार बार जन्म लेते हैं और बार बार ऐसे ही ताप से त्रस्त होकर के दुखी मर जाते हैं। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो इस ट्यूब से उछल के पार हो जाते हैं। जिस ट्यूब में आप पक रहे होते हैं उससे उछल के पार हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि गुरुजी कोई उपाय बताइए। और मैंने कहा था योग युक्ति है, उपाय है।
आप योग के पास जाएंगे तो योग उपाय बताएगा। ठीक है भाई, तुम उछलना जानते हो, एक छलांग मारो ट्यूब से बाहर, मेढक का काम है उछलना, वो उछलता और ट्यूब से बाहर निकल जाता। लेकिन कई लोग दुखों की आदत बना लेते हैं। हाँ, आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि ये भी कोई बात हुई, दुखों की आदत भी कोई बनाता है? कौन दुखी होना चाहता है? सब लोग सुखी होना चाहते हैं। पर ये दुर्भाग्य देखिए कि आप कहते हो कि हम सुखी होना चाहते हैं, सिर्फ कहते हो, लेकिन करते सारा वही काम हो जिससे कि आप दुखी हो। आपके सारे एक्शंस होते इसी के लिए है कि आप दुखी हो। आप दुखी होने के लिए बाध्य हैं, दुखी ही होना रहना चाहते। आप उसी ट्यूब में सड़ते मरते रहना चाहते हैं जो लगातार गर्म हो रहा है। सुख की बात ही नहीं करते। कोई आके उठाता है, बताता है भाई उठो, चलो योग में क्लास में चलो, योग का क्लास सुबह 7 बजे होता है। लेकिन नहीं, ठीक है, सो रहे हैं, इट्स ओके। कोई बात नहीं। दुख के कारण तो आप इतने छाती से इसको चिपकाए रखते हो, उसकी वृत्तियां बना के रखते हो कि बहुत मुश्किल है बाहर निकलना। तो राजयोग उनके लिए नहीं है जो कि बदलना नहीं चाहते, जो कि दुख में पड़े रहकर मरना चाहते हैं, उनके लिए नहीं है राजयोग। What I am saying is Raj Yoga is not for those who don't want to come out from the pain and suffering. You may ask, how come everybody want to be come out from the suffering and pain? Everybody want happiness and bliss and pleasure. Nobody want to be suffered. But yes, this is what the irony is in our life. Even we talk about the happiness, we talk about the bliss, but we do all those things which makes binded with the sorrow, the pain. We do all everything which let you come like like a frog and die inside the tube. You can jump out. Yes, you can jump out. It is not a question of courage. It is a question of intention. It is the question of direction. You are okay with that suffering. You wanna die with those suffering. Then Raja Yoga is not for you. Raja Yoga is for those who want change, who want to jump out, who want a transformation. Those who really want to come out. There is a possibility. There is and yoga talk about those possibilities, those ideas. In the last class, I told you there is 3 meanings of yoga. One, second, the samadhi, the enlightenment of the consciousness, and the third is the upaya, the idea, the tricks. So yoga talk about how you come out. So Raja Yoga is actually the solutions how to be free from these 3 types of heat. There are 3 types of tap, heat, the suffering, the pain in our life. What 3 types of pain? The Deviya, the divine, the bhautik, the physical, the adhyatmic, the spiritual. So we will discuss the 3 types of pain and suffering. And these 3 types of pain and suffering make slowly die like a frog. So Raja Yoga is the solution. So let's find the solution. तो पहला मैंने क्या बताया? What the first to whom the Raja Yoga is? जो अपने दुख से बाहर आना चाहते हैं,
एक तो दुख है, देर इज अ दुख. द लॉर्ड बुद्धा गिव्स फोर नोबल ट्रूथ. There is a four noble truth. There is a dukkha. Suffering is there. Yoga Sutra is the same. Dukkha is there. There is a upaya. There is a solution. There is a solution. So there is a two things. I am using here now a technical terminology. We should remember it. He and Han. Now I am giving you two Sanskrit terminology. What is He and what is Han? दो शब्द मैं बताता हूं, हे और हान. हे का मतलब होता है जो हे है, जिसको छोड़ा जाना चाहिए, दुख परेशानी, जो हे है. और हान मतलब खुशी, जिसको पाया जाना चाहिए. हे जिसको छोड़ा जाना चाहिए, हान जिसको पाया जाना चाहिए. हान मतलब सुख, प्लेजर. हे मतलब दुख. So there is two things. He which you have to leave, which gives up. Because of that we have sorrow, pain, suffering. That is here. And Han is just opposite. The bliss, the achievement which make your soul uplifted, your consciousness enlightened. That is Han. इन्हीं दोनों हे और हान से दो चीजें और बनी. दो शब्द में और आपको नया नया देता हूं. हे हेतु और हान हानोपाय. ठीक, ये चारों शब्द आप लिख लो. इफ यू आर राइटिंग then please write down these four words. First is he and this is han. He, and from he one more word come out. हे हेतु, हेतु. और हान से एक नया शब्द बना हानोपाय. तो चार शब्द हो गए. हे हेतु, हान हानोपाय. Right? There is a four words. That is, one is he, second is he hetu, the third one is han, and the fourth one is hanopai. That is what the objective of Raja Yoga. If somebody asks you what is the objective of the class today, what you are studying in the morning 7 o'clock with Dr. Rajesh, then you say, yes, there are four objectives. What? The he, hetu, han, and hanopai. This is the four objectives. So he and han, you understand now. What is he and what is han? आप ये दो समझ गए. अब हे हेतु क्या है? What is हे हेतु? हे हेतु means दुख का कारण क्या है? दुख है. There is a he. This is the suffering. The he hetu. What is the reason of the dukkha? What is the cause of the dukkha? हे हेतु. कहते हैं ना, किस हेतु तुम परेशान हो? हेतु क्या है? हेतु means what is the cause? कारण क्या है? तो हे और हेतु, दुख और दुख का कारण. दो टर्म हो गए. एक दुख हो गया, एक दुख का कारण हो गया. One is suffering and second is cause of suffering. So हे हेतु means cause of suffering. उसी तरह से हान और हानोपाय. हान मतलब bliss, परमानंद, आनंद, मोक्ष, salvation, realization. हान. हान मतलब जो रियल उपलब्धि है. दैट इज हान. हानोपाय, उसके उपाय क्या है? What are those things, the tricks and stunts from which we get the han?
That is the base of Raja Yoga, and you will surprise. This is the same base of Buddhism. In Buddhism, the Four Noble Truths is exactly the same. How come Buddhism and Yoga Sutra is so same, so equal? They start with the same forms. They start with the same theory. Because Buddha in his earlier age, when he went to forest, when he left his kingdom and went to forest, he practiced Sankhya and Yoga. He practiced very long time, 12 years of the practice of Samkhya and Yoga. That's why if you watch the Buddhism is full of Yoga and Samkhya. There are so many sutras in a sutra in a Buddhism are exactly the same as Yoga Sutra. Exactly the same. So when I am talking about Yoga Sutra, many times you will realize, oh, we are studying the Buddhism. Buddhism are somehow very close to Yoga Sutra. So Buddhism also start with these four noble truths. दुख, दुख के कारण, निर्वाण और निर्वाण के उपाय, यही चार. हेय, हेय हेतु, हान, हानोपाय. These are the four things. What we study in the Raja Yoga, what we do in the Raja Yoga. So Raja Yoga is what? To know the suffering, how to come out from the suffering, what is the cause of the suffering, and what is bliss, the real state, and how we get that reality, the absolute self. So this is what the uddesha, the aim and objective. And what is the uddesha of our life? What is the aim of our life? हमारी जिंदगी का भी क्या उद्देश्य है? कभी आपने सोचा है कि हम क्यों जीते हैं? हम पैसे जमा करते हैं, सुविधाएं जमा करते हैं. क्यों करते हैं सुविधाएं जमा? ताकि खुश रहें, सुखी रहें. सुखी रहने के लिए करते हो ना? किस लिए इतना मेहनत करते हो? दिन भर काम करते हो, परिश्रम करते हो, लोगों से मिलते जुलते हो, दोस्ती करते हो, रिलेशंस बनाते हो, बाल बच्चे बनाते हो. क्यों बनाते हो? सुखी होने के लिए ना. यू वांट टू बी हैप्पी. हान, सारा सारा मेहनत किस लिए है? टू मेक योर सेल्फ फील गुड, इजंट इट? और इसके एवज में आपको मिलता क्या है? इतना सुख होने के प्रयास में मिलता क्या है? दुख. मजे की बात है, जितने सुखी होने का प्रयास करते हो उतने ही दुखी होते जाते हो. जितना सुख जिंदगी से निचोड़ते हो उतने ही दुख मिलता है. तो ये उल्टा कैसे हो गया? आप सुख को पाने चले थे, दुख कैसे मिल गया? Every moment in your life you wanted to be blessed and blessed. You wanted to be happy and pleasure. And the moment you get the happy and pleasure, you feel, oh, you are suffering. Enormous pain is there, enormous suffering is there. You wanted to really enjoy the freedom of happiness, the freedom of pleasure, and what you get, the suffering, the pain. What happened? What wrong you did? आप चाहते तो थे सुखी होना, पर दुखी कैसे हो गए? आप चाहते तो थे, आपने सब प्रकार के प्रयास किए, आपके पास पैसे नहीं थे, आपने पैसे बनाए, आपके पास सुविधाएं नहीं थी, घर, गाड़ी, बंगला, सब सुविधाएं आपने खड़ी की, आपके पास मित्र नहीं थे, आपने परिवार बनाया, मित्र बनाया, सब कुछ किया. यू डिड एवरीथिंग टू मेक योर सेल्फ हैप्पी. आपने सब कुछ किया अपने
को खुश करने के लिए, सुखी शांति जीवन के लिए। पर क्या मिला? व्हाट यू गेट? दुख। जहां से चले थे, जब आप अभाव में थे, जब ये सब कुछ भी नहीं था, तब भी दुख था, और सब कुछ पा लेने के बाद भी दुख है। कहां फंस गए? क्या हो गया? मुझे याद आता है एक आदमी जो इस नदी को पार करके उस पार आनंद में जाना चाहता था। उस पार में सुख था, आनंद था, बीच में नदी थी, नदी को पार करना था। नाव मिल भी गया, मेहनत की, संघर्ष की, कोई जॉब मिल गया, नाव खेने भी लगा, चप्पू मिल गया, उसको लगा पैसे बना रहे हैं, परिवार बना रहे हैं, दोस्ती रिश्तेदार सब बना रहे हैं। चप्पू खेते गया, ऐसे नाव चलाते गया, सुबह से शाम, शाम से रात। And he found in the morning where he started yesterday in the morning, and today he is at the same place. वो वहीं पे खड़ा है, वो पार भी नहीं हुआ। सारी मेहनत करी, सारा चप्पू चलाया, लेकिन वो वहीं के वहीं, नाव वहीं है, नाव जिस किनारे में खड़ी थी उसी किनारे में नाव है। अरे कहां गलती हो गई? वेयर यू डिड द मिस्टेक? उलट के देखा तो पता लगा कि नाव जिस से बंधी हुई थी, जिस खूंटी में बंधी हुई थी, उस खूंटी से तो आपने नाव को खोला ही नहीं, उस नाव को उस खूंटी में बंधा हुआ ही रहने दिया, और ऐसी नाव चेपू से ऐसा रहे, चला रहे। रात भर मेहनत करी, दिन भर मेहनत करी, चप्पू खेते रहे, लेकिन नाव तो वहीं बंधी हुई थी, उस बंधन को तो खोल दिए होते। वो जिस जगह आपने नाव को बांध के रखा था रस्सी से, वो रस्सी को खोल देते तो पता नहीं कहां से कहां चले जाते। सेम मिस्टेक। I am telling an analogy. Somebody who wants to get pleasure and happiness in their life, he got a boat to across the river of pain and suffering, a pain of absence, and he got the boat, and whole day and night he tried to boating and cross the river, but in the morning he felt he is at the same place. What happened? He did boating whole night, whole day, but the thing is that he forgot to unbind the bondage, the rope where the boat is binded in the bank outside the river. He didn't open that rope who binds the boat. The same mistake we are doing. हम लोगों ने अपनी नाव को बांध रखा है, उसको खोलिए। And that is what the Raj Yoga says. The Raj Yoga is talk about where you are binded. हेय हेतु, किस हेतु ये हेय है, किस हेतु, किस कारण ये हेय है। हेतु, the cause, हेय हेतु। So today, what we actually learn, who is the real practitioner, और वो कौन लोग हैं, the righteous person, कौन अधिकारी हैं, किन्हें राजयोग को अध्ययन करना चाहिए। जो लोग बाहर आना चाहते हैं। अथ योगानुशासनम, अथ, the word ath is there in the first sutra. Ath means, okay, we did, now we will start. We went many schools of thought, we went many religions,
the systems in religions. I'm tired. Now there is no hope. And now I came to the discipline of yoga. Let us start the discipline of yoga. Ath says this. So अथ शब्द जो है, जो सूत्र का पहला शब्द है अथ, वो अधिकारी भेद को बताता है. Qualification. What is the qualification for the Raja Yogis who want to seek the Raja Yoga, who want to enter into Raja Yoga, who really is a seeker, a spiritual seeker, who really want to change, transform, sublimate. इसी तरह ब्रह्म सूत्र में भी है, वेदांत में भी है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसमें भी अथ शब्द है. उसमें भी यही बात कहा गया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिसको ब्रह्म की जिज्ञासा हो, कौतूहल नहीं, जिज्ञासा हो, जो जानना चाहता हो ब्रह्म को. वेदांत के सूत्र है ये. उसी तरह से योग सूत्र भी है, अथ योगानुशासनम, योगिक अनुशासन. लेट there is a discipline of yoga. और हम 3 तरह के चित्त की भूमियों में होते हैं. वैसे चित्त की 5 भूमि होती है, पर हम 3 ही तरह की भूमियों में जीते हैं. या तो क्षिप्त होते हैं, या मूढ़ होते हैं, या विक्षिप्त होते हैं. आपको लगेगा कि आज गुरुजी कैसी बातें कर रहे हैं, हम मूढ़ कैसे, हम क्षिप्त हैं या विक्षिप्त हैं. Let's know these terms. These terms are going to be useful for you. ये सारे शब्दावली useful है. What is क्षिप्त, what is मूढ़, and what is vikshipta. I'm going to say this. We are always in these 3. Either we are kshipta, whether we are mood or vikshipta. What is these terms? Kshipta. Kshipta मतलब होता है mentally retarded, पागल, क्षिप्त हो जाना. और आप ऐसा मत सोचो कि आप कभी क्षिप्त नहीं होते. कई बार आप बोलते हो ना कि मेरी बुद्धि पागल हो गई थी, मैं अपने आप में नहीं था, मैं अपने होश में नहीं था, मेरे से गलती हो गई, इतना गुस्सा आ गया कि मैंने डैश डैश डैश, तो मैं अपने आपे में नहीं था. व्हाट इज दिस? व्हेन यू से दिस, व्हेन यू से दिस, दैट मीन्स your mind is distracted. It's not only the distraction, it's the obsession, it is the kshipta. You are in a state of kshipta. Your mind is not functioning. Yeah, or you can say abnormal mind. Kshipta means abnormal mind, not normal. You are not there when you are doing, when you are so angry and you start slapping your child, you are not there. There is only growth, there was only the anger. You were not there. आप नहीं थे वहां पे. वो क्षिप्त है, वो अवस्था क्षिप्त कहलाता है. और सबके जीवन में when you are not there, you are not there. अभी मैं बताऊंगा फिर कौन रहता है. then who is there? That is your vritti, your vasana. भाव के प्रभाव में आ जाते हैं आप, उसके इमोशंस के मूवमेंट में आप आ जाते हैं, उसके करंट में आप आ जाते हैं. and you do nonsense, and every day every people feel some nonsense in their life. They feel, oh, I did nonsense, how come I do this, I should not do this, how could I did this nonsense. Yes, sometimes you do it. That is what the kshipta means. And believe me, your mind is in a state of kshipta many times. Once I asked my students in South Korea,
that please write down whatever comes in your mind for next 20 minutes. So next 20 minutes, whatever comes in your mind, I'm not going to look at it, just write down. जो भी आप भी कर सकते हो, कभी 20 मिनट के लिए बैठ जाओ डायरी लेकर के, जो भी मन में आ रहा है लिखते जाओ, जो भी व्हाटएवर रिकॉर्ड कर लो, बोलते जाओ और रिकॉर्ड करते जाओ. आप किसी को सुना नहीं पाओगे. इतना क्षिप्त, इतना क्षिप्त, ये इतना ज्यादा क्षिप्त होगा, इतना नॉनसेंस होगा कि आप किसी को सुना नहीं सकोगे. Nobody in that class who shown me what they written. That much madness in the mind. क्षिप्त means the madness, पागलपन. आप कहते हो कि पागल खाना पागलों के लिए बना है. कभी आप भीतर झांक के देखो, वो अपनी पागलपन को एक्सप्रेस कर देते हैं, इसलिए पागल कहलाते हैं. आप एक्सप्रेस नहीं करते हो, थोड़े से इतने भर बुद्धिमान हो कि अपने पागलपन को छुपा लेते हो. इतनी ही अंतर है. आप अपने पागलपन को छुपा लेते हो, और सो कॉल्ड मैड पीपल जो पागल कहलाते हैं, वो अपने पागलपन को छुपा नहीं पाते, वो एक्सप्रेस कर देते हैं. तो तुम उसको पागल कहते हो, उसको पागल खाने भेज देते हो. लेकिन सारा पागलपन हमारे ही भीतर है, क्षिप्त है हम लोग. मैं आप लोग को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, मैं वास्तविकता बतला रहा हूं. I am not making you demoralize, I am showing you the reality, the madness. We are mad. Just only what we do is we hide our madness. That is what the difference between common people and the mad people. The mad people express themselves whatever they comes, and I think this is more truthful. They are more true. At least they show whatever they comes in their mind. Look at the mentally retarded people, mentally retarded child. Whatever they comes in their mind, they speaks, they express. And we, so-called normal people, so-called intellectual people, we have the same expressions, we have the same madness, but we hide. हम लोग झूठ बोलते हैं. We are wrong. In hidden way, we are also the same. So when I say kshipta, क्षिप्त means that madness. दूसरी अवस्था है मूढ़. मूढ़ का मतलब है मूढ़ता, मूर्खता, इग्नोरेंस. पता ही नहीं है, होश ही नहीं है, मूढ़ ही है. लोग बोलते ना एकदम बिल्कुल मूढ़ है, मूर्ख है, कुछ पता ही नहीं है, उसको कुछ जानकारी नहीं है, सत्य क्या है असत्य क्या है. There is a difference between क्षिप्त and mood. The foolish people are not the mad people. The foolish is the foolishness. They're fool. उनको कुछ पता नहीं है, मूर्ख है वो. दिमाग को चला नहीं सकते, दौड़ा नहीं सकते, दिमाग में गणित नहीं लगा सकते, अवेयर नहीं, देर अनअवेयर. आप मूढ़ लोगों को देखना, मूढ़ लोग सबसे ज्यादा अनअवेयर होते हैं, उनको उनकी सजगता एकदम शून्य होती है. और मूढ़ लोग क्यों? कभी आप अपने भीतर झांकिए, आप कितनी बार मूढ़ होते हैं. यस, हाँ, हम लोग होते हैं मूढ़. आपको सुन करके अच्छा नहीं लग रहा होगा. कभी मैं आपको शब्द भी कह रहा हूं, हम सब अपने आप को हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग मूढ़ भी. हाँ, हम लोग हैं. बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं, मूढ़ ही होते हैं, हम अनअवेयर होते हैं, कुछ होश नहीं रहता है, मूर्खतापूर्ण कृत्य करते हैं, उसको कहते हैं मूढ़ होना. और एक तीसरी अवस्था है विक्षिप्त. विक्षिप्त, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त. विक्षिप्त का मतलब डिस्ट्रैक्टेड. आप मंकी की तरह यहां कूद रहे हैं, वहां कूद रहे हैं, इस थॉट में जा रहे हैं, उस थॉट में जा रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख, एक साथ कई थॉट जा रहा है, कभी वहां झांक रहे हैं, कभी वहां झांक रहे हैं. दैट इज कॉल्ड विक्षिप्त. व्यग्र, आप व्यग्र हैं, विक्षिप्त हैं. तो हमारे अंदर ये तीनों गुण होते हैं. गुण कह लो या अवगुण कह लो. So these three state of
consciousness we have. We have vikshipta, is distracted mind. When a lot of thoughts is coming in the same time, you are jumping from this thought to that thought, then that thought to that thought. That is what the vikshipta is. Mood is the fullness, and vikshipta is the madness. And these three basic qualities are always there in us. We always have these three qualities. So, what is the cause? Is mudchipta vikshipt? Is the cause of all heya, dukha, suffering is mudchipta and vikshipt? क्या ये कारण है? क्या हमारे दुख का कारण मूढ़ और विक्षिप्त है? क्योंकि हम लोग मूढ़ विक्षिप्त एक तरह से partially yes, but there is something more, something deeper behind it. Something is very deep behind it, what is called the heya hetu. But today is getting very long discussion. So I'm going to ask you this question for the week. So this is an assignment for all of you. If mood kshipt and vikshipt is not the cause of our suffering, then what is the cause of suffering? आपको एक सप्ताह में ढूंढना है कि आपकी मूढ़ता, आपकी क्षिप्तता और आपकी विक्षिप्तता यदि दुख का कारण नहीं है, हे हेतु नहीं है, तो हे हेतु क्या है? ये आपको ढूंढना है, मनन करना. Think about it. It is there inside you. You have not to read the books. You have not to ask your masters. You need not to ask your teachers. Don't ask teachers. Don't look at the books. Just sit down and find out inside. Go deep and find out. Go deep and find out what is the cause of the suffering. Is it mood chipt and vikshipt? I said yes, partial. But it is not the actual reason. What is the actual reason? You have to find out. This is my assignment. आप लोग को assignment समझ में आ गया? दूसरी बात, अगले सप्ताह से हम लोग एक रूटीन मैप शुरू करेंगे. आई विल गिव यू अ डेली रूटीन. Daily routine in not you have to follow the routine, but I give you a pattern in which you analyze your daily routine, and that pattern you have to develop. आप लोग को एक पैटर्न देंगे आपकी रूटीन को एनालाइज करने के लिए. आप अपने आप को जांच सको, भांप सको, दृष्टा की तरह देख सको. Become an observer, become an seer. You can watch your whole day, watch your behavior, watch yourself, and find out where are you, who are you. So from next week we add a routine analysis practices also. But today, from 1 week, what you have to do is watch your whole body, become a drashta. As I taught first lesson, become a drashta, watch your whole body from right to left and low to up. Whole body, watch it. Be an observer, be a witness. And the last thing in this week, coming week, what you have to do is just raise this question in your mind. What is heya hetu? What is the cause of suffering? आप लोग को 3 काम करने हैं. एक कि आप लोगों को अपने शरीर के प्रति दृष्टा बनना है. दृष्टा भाव विकसित कीजिए, अपने आप को देखिए. दूसरा, आपको मनन करना है. सोचिए, विचार कीजिए कि ये सब सफरिंग क्यों है. आपकी क्षिप्तता की वजह से, विक्षिप्तता की वजह से, या आपकी मूढ़ता की वजह से, या कोई और वजह है. और तीसरा कि हम आपको आने वाले समय में रूटीन एनालिसिस सिखाएंगे कि रूटीन को एनालिसिस कैसे की जाती है. तो उसके लिए आप अपनी तैयारियां कर लीजिएगा. इसी बीच हम लोग आपके लिए बहुत सारे कार्यक्रम लेके आ रहे हैं. हठ योग की क्लासेस शाम के 7 बजे भी है, सुबह के 7 बजे है, जो रोशन लेके आते हैं आपके लिए. आप हठ योग को एंजॉय कीजिए. जितना हठ योग को एंजॉय कीजिएगा उतना ही राजयोग में भी मजा आएगा.
इसके अलावे बहुत सारे आने वाले समय में हम कोर्सेज करेंगे, त्यौहार मनाएंगे, आपके जन्मदिन मनाएंगे, बहुत सारे चीज़ हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। आप सहयोग करें, आप हमारे साथी बनिए, हमारे हमसफर बनिए और राजयोगी बनिए। तो योगी राज के साथ राजयोगी बनिए आप। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आई हैव 10 more minutes. If anybody have any question, please. मेरे पास 10 मिनट है, आप लोग के पास कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर क्वेश्चंस। नो क्वेश्चंस? जी गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने यदि ध्यान कराया था तो उसमें आपने 2-3 बार एक लाइन यूज की कि आप देखिए कि आप कहाँ हैं। आप शरीर नहीं है, आप हाथ नहीं है, पैर नहीं है, अंगूठा नहीं है, तो आप हैं कहाँ एक्चुअली? तो इस प्रश्न का कुछ जवाब मिल सकता है गुरु? वीरेश्वर वीरेश्वरानंद जी, तो जवाब पे जल्दबाजी मत कीजिए। जवाब के लिए तो पूरा जीवन है। जवाब मिल जाता है तो हम लोग बड़ी जल्दी मान लेते हैं। जवाब बस 2 लाइन का ही है। 2 लाइन मैं बोल दूंगा, आप मान भी लेंगे, समझ भी जाएंगे, पर वो जवाब नहीं होगा, तब ये उत्तर नहीं होगा। उत्तर तो तब होता जब आप जान लेते। तो यहाँ पे मानना नहीं है कि क्या गुरुजी कह रहे हैं उसको मान लें। यहाँ मानना नहीं है, यहाँ पर जानना है। तो मान तो एक मिनट, लेट देयर इज अ एक्स, लेट देयर इज अ वाई, मान ले, तुरंत मान ले कोई बात को। मानना बड़ा आसान है, पतंजलि का योग सूत्र उठाइए, मान लीजिए सारी बातें। तो हम मानने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम तो जानने के लिए कह रहे हैं। इसमें इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, बड़ा उद्यम करना पड़ता है, बड़ा मेहनत करना पड़ता है, बार बार, एक बार नहीं, बार बार, है ना। इतनी बार मेहनत करना पड़ता है, इतने दीर्घ काल तक। सतु दीर्घ काल निरंतरीय सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। बहुत दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धा के साथ बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जो हम कह रहे हैं वो एक इंफॉर्मेशन, एक सूचना के रूप में आप अपने दिमाग में जमा कर सकते हैं, लेकिन जान नहीं पाएंगे। वो सूचना बन सकती है आपके लिए, इंफॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन वो आपकी प्रज्ञा नहीं होगी। प्रज्ञा होने के लिए तो निरंतर बार बार श्रद्धा के साथ प्रयास करना पड़ेगा। लगातार मेरे साथ ये जो मैं कह रहा हूं कि मांसपेशियों में जाओ, जो मैं मेडिटेशन करा रहा हूं, बार बार आप कीजिए, बार बार देखिए, बार बार कोशिश कीजिए देखने का, बार बार मांसपेशियों को देखिए। दिन में 10-10 बार देखिए, 20-20 बार देखिए, हर रोज देखिए, कई कई बार देखिए, और पूछिए अपने आप से कि इनमें हम कहाँ हैं, इनमें मैं कहाँ हूं। उत्तर जानने से उत्तर वास्तव में है ही नहीं। उत्तर जो भी मिलेगा वो सूचना है, वो मान्यता है, वो मान्यता है। जो आप प्रश्न पूछेंगे उस प्रश्न से आपको अनुभव मिलेगा, उत्तर नहीं मिलेगा, अनुभव मिलेगा। उससे आपको प्रज्ञान मिलेगा, उससे आपको याद आएगा, ओ अच्छा 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 अच्छा। ऐसा नहीं कोई नई चीज मिल जाएगी आपको। किसी को कभी भी कोई नया चीज आज तक नहीं मिला है। नो वन फाइंड द न्यू थिंग नेवर इन देयर लाइफ। हाँ, उसको याद आ जाता है, अच्छा 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 अच्छा, ऐसा हुआ था। तो आपको याद आ जाएगा किसी दिन, बार बार प्रयास करते 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 आपको याद आ जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं जो उत्तर आप मुझसे चाह रहे हो, उत्तर आपके भीतर पहले से है, आपकी स्मृतियों में। स्मृतियों से परे आपकी चेतना में, और चेतना से परे आपकी आत्मा में। उत्तर है वहीं पे। वो अनुभवों से जाना जाएगा, बार बार के अभ्यास से जाना जाएगा, बार बार के प्रयत्न से, बार बार के अभ्यास से। तो बार बार अभ्यास करेंगे, वैराग्य करेंगे, प्रयत्न करेंगे, मेहनत करेंगे, तो धीरे 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 आपको याद आते जाएगा, समझ में आते जाएगा, अच्छा 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 ये बात था, ओके, दिस इज द फैक्ट। तो हम समझते हैं कि आपको उत्तर मिल गया होगा। So the question I give you in English in a very short language. So Vireshwar ji asked this question.
that why is it to find out the muscles and bones when I taught the meditation where I am, to find where I am. Should I give some answer to this question? And I denied it. I said, don't give the answers. I said, try and try, but don't hurry for the answers. There is no answer. There is only experience. There is only feeling. There is something you recall, remind, you remember. That is what the whole question answer was. So I'm looking, Nikhil Parikh has a question. So Nikhil ji. प्रणाम गुरुजी। हेलो। अच्छा, अभी जो हमने बात की, क्या हम उसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारी जो जर्नी है, जो हम सीख रहे हैं, वो मान्यता से वास्तव की जर्नी है, यानी कि जो है, यानी कि जो हम मान्यता करते हैं, जिसको मानते हैं, जिसको समझने की कोशिश करते हैं, तो ये मान्यता से लेके वास्तविकता की जर्नी को ऐसे समझ सकते हैं कि बस सिर्फ समझना है, सिर्फ अनुभव करना है, और अनुभव हुआ तो कुछ बोलने लायक भी नहीं बचेगा, बस उसको सिर्फ अनुभव ही करते जाना है। क्या इसको ऐसे समझ सकते हैं? यस, इसको हम लोग ऐसे ही समझ सकते हैं कि हम लोगों को अनुभव करना है। ज्ञान सूचना नहीं है, ज्ञान अनुभव है। तो हम जितना अनुभव करते जाएंगे, चाहे वो बता पाए या न बता पाए, ये अनुभव ही प्रमाणिक है, यही प्रमाण है। जब हम प्रमाण की आगे हम प्रमाण की भी बात करेंगे। जब हम प्रमाण की बात करते हैं तो सत्य के अनुभव की बात करते हैं। तो ये अनुभव होना जरूरी है, और बार बार के प्रयास से हम अनुभव को ही प्राप्त होते हैं। अनुभव से ही हम सत्य को जानते हैं। सबसे प्रत्यक्ष तरीका अनुभव ही है। तो इसलिए हमें अनुभव की भी कैटेगरीज है। अब किस लेवल का अनुभव? क्या वैचारिक लेवल का अनुभव, प्राणों का अनुभव, या प्राणों से परे चेतना का अनुभव, चेतना से परे महत का अनुभव, कॉस्मिक अनुभव? अनुभव भी कई कैटेगरीज के हैं। वो जब आपको हम चित्त आगे समझाएंगे, चित्त के अन्य स्वरूप को समझाएंगे, तो हम लोग अनुभव की भी अलग अलग कैटेगरीज को समझेंगे। अनुभव कितना सूक्ष्म और सटल होता चला जाता है उसको भी समझेंगे। So the question was, is it the experience is the answer? And I replied, yes. Experience is the only answer. And experience is also classified into different subtle and subtler forms. A varieties of subtle forms is there. When we ask who is experiencing, is it your senses? Is it your prana? Is it your chetna, or beyond the chetna? Who is sensing? Who is experiencing? Then you go more subtle and subtle level of experience. So in coming week, we will talk on this. I can see some more questions, some more people raising their hands. Yes. सर। हाँ, उत्कर्ष जी आप पूछें। जी सर। सर, प्राण और आत्मा का अंतर समझना था। आपकी आवाज कट गई उत्कर्ष जी, सवाल पुनः दोहराएं। सर, प्राण और आत्मा का अंतर जानना था सर, क्योंकि आपने पूछा कि आप कहाँ हैं और आप कौन हैं। उसके इन्वेस्टिगेशन जैसे ही शुरू करी, सबसे पहले यही प्रश्न मन में आया कि प्राण है या आत्मा है। प्राण का मतलब प्रकृति और आत्मा मतलब पुरुष। प्राण का मतलब शक्ति और आत्मा का मतलब शिव। ठीक है? तो प्राण जो सृष्टि करता है, और आत्मा जो सृष्टि को संकोच करता हो, जो दृष्टा हो। जो प्राण का दृष्टा है वही आत्मा है। जो प्राण को देखता है, जो प्राण के प्रति दृष्टा भाव रखता है, वो दृष्टा आत्मा है। और जो सृष्टि करता है, जो सृष्टि हो रहा है, जो दृश्य है, वो प्राण है। तो प्राण प्रकृति है, और इस प्रकृति को जानने वाला आत्मा है। ठीक है उत्कर्ष जी?
और अभी आने वाले समय में इस प्रश्न पे, प्रकृति और पुरुष पे बहुत सारी बातें होंगी। लगभग आधी योग सूत्र इसी प्रश्न पे है कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। अभी प्रकृति पुरुष पे बहुत सारी बातें होंगी। We'll have a long discussion about the prana and the Atman. So, time to time, we will discuss on this. But yes, the question was, what is prana and what is Atman? The prana is Prakriti, the evolution. The prana is the cosmos, the universe, and the knower, the witness, the observer, the seer, the drashta is the Atman. So that is the difference between Atman and the prana. So I hope today's all questions are over, and time is also 8:30. So I thought 90 minutes will be good for your practice. So again, in next Sunday, 90 minutes, we sit again from 7 to 8:30 with our diary. So bring your diary also, so to write down the good words. As I said today, hey Han, hey hetu Hanupai, we'll discuss like mood, chipt, vikshipt. You all write down these things. Think about it. You take this assignment of your manan, your contemplations, and we meet again in the next weekend on next Sunday with the more